Hello everyone, welcome to the friction part 2. So what is friction? We have learned how friction occur, that we have learned. You can see my 2 minute summary also that I have given. So today's time for session 2. We will start from today. Factors affecting friction, effects, types, everything we will cover today. We will try. If we not complete, then we will go into the next class. Okay. So factors affecting the friction. So we have seen that rougher surface will cause more friction. Why? There will be more irregularities. I have told you, more irregularities, more gaps, more stuckings, more friction. Less irregularities, less gaps, less stuckings, molecular adhesion less, electromagnetic force less. That's why the friction will be also less. So rougher the surface, greater would be the irregularities, and it will be harder to cause relative motion, and it will be harder to move them. Okay, it will be harder to move them. So thus the magnitude of the friction would depend on the nature of the contact surface. जो nature है उसका भी depend करेगा. Okay, जो nature है उसका ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा. Why? I have told you, see the picture, the rough surfaces, they are just rubbing against each other. So you can see as they are rubbing against each other, a force is generated, that is known as the friction. ना मोर रफ होगा तो ज्यादा फोर्स जनरेट होगा ना. अगर लेस तो ऐसा 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 हुआ, लेस होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन कि नेचर ये राफ है या स्मूथ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शन. सो स्मूथ सरफेस विल अप्लाई लेस रेजिस्टेंस टू मोशन, while मोर रेजिस्टेंस. स्मूथ सरफेस में लेस रेजिस्टेंस मतलब कम फोर्स लगेगा आपको मूव करने में, जबकि आपको रफ सरफेस में ज्यादा फोर्स लगेगा. इसलिए अगर आप आइस में चलोगे, आइस में तब यू विल फील स्लीपी. Okay, it will be very sleep, you will be sleep, right? But here in the normal ground, do you sleep? No. In the mud you tend to sleep because they are more smoother than this. So that is shown, that is told here. Okay, what is told? That the friction would depend on the contact surface. If it's rough, then more friction. ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं, अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए रफ सरफेस. ओके, रफ सरफेस ऐसा है. Now see, each gaps will be coming together, एडिशन होगा, मीन्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. so इट्स इतना सारा अट्रैक्शन हो गया. चेक, ये so एक इसके लिए भी हो रहा है एडिशन. मैंने बोला ना कि कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वही देखिए, इसलिए कॉम्बिनेशन हो गया. या फिर और एक थिंग हो सकता है कि ऐसा राफ है, इसलिए इसका गैप्स में ये फंस जा रहा है, इसका गैप्स में ये फंस जा रहा है, इसलिए वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. सो रफनेस एंड द मॉलिक्यूलर एडिशन विल हैपन. बट अगर ये स्मूथ होगा, अगर देखिए अगर ये स्मूथ होगा तो कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पर ये बस. सो यहाँ पर इजी ना, फोर्स कम लगेगा ना, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, कॉम्बिनेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का. पर यहाँ पर देखिए कितना कॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ है, यहाँ पर लेस फ्रिक्शन हुआ. और राफ के साथ देखेंगे तो ऐसा होगा, तो यहाँ पर लेस गैप्स है, मतलब लेस फ्रिक्शन होगा, तो वो अटकेगा नहीं. अगर ज्यादा गैप्स होगा तो उसके अंदर अटक जाएगा और मूव करने में दिक्कत आएगा. सो वही बोला है. सो दैट रफ सरफेस विल बी हैविंग मोर फ्रिक्शन. ओके, rough surface will be having more friction. So nature of the substance it will be depending. Okay, कि वो रफ है या कि वो स्मूथ है.
The magnitude of the friction depends on how hard the subjects are pressed together. देखिए now ये सेम टाइप का सब्सटेंस है, ओके सेम टाइप, ये एक है ऐसा और ये सेम टाइप है, इसलिए मैं इसे इसे ही कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। चलो तो सेम सब्सटेंस आ गया, दोनों सेम है कि नहीं, बोथ आर सेम, राइट, बोथ आर सेम। चलो नाउ we are pressing one, we have given here 90 newton force and here I am giving 10 newton force, ठीक है, correct। So when this is happening, so this is sliding down because more force is applied, but this is up only, सेम है पर फोर्स ज्यादा लगा इसलिए ये नीचे दब गया, राइट। देखिए यहाँ पर दूर होने के लिए कुछ ही मॉलिक्यूल यहाँ पर अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, पर यहाँ पर पास आ जाने के लिए सब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लिया, so this will have more friction than this, correct or not, just me tell you। यहाँ पर ये दब गया इसलिए मॉलिक्यूल्स पास आ गया, मॉलिक्यूल्स पास से आया तो क्या हुआ, ज्यादा एडिशन हो गया, ज्यादा कॉम्बिनेशन हो गया देन नॉर्मल वन, देन लेस फोर्स, दैट्स वाई ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा और हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। Who is not clear in this topic that ज्यादा फोर्स ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा वेट ज्यादा फ्रिक्शन, so weight is directly proportional to friction, एडहेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, ज्यादा एडहेशन वैसली ज्यादा एडहेशन ज्यादा फ्रिक्शन, इसलिए रफ में ज्यादा एडहेशन होता है इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ज्यादा रफ है, रफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, ज्यादा रफ होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कम होगा कम रफनेस होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा कम वेट होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, ज्यादा एडिशन होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कम एडिशन होगा तो कम, तो ये आप मात्रा में रख दीजिए कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, ओके, एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, और क्या बोला मैंने, और क्या बोला, रफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मतलब यही है, इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कमेगा तो दूसरा भी कमेगा, अगर रफ वेट कमा तो फ्रिक्शन भी कमेगा, सो अंडरस्टूड, यस। सो सेकेंड थिंग मैंने क्या देखा, सेकेंड थिंग हमने देखा कि मैग्नीट्यूड किस में डिपेंड करता है, हाउ हार्ड, मतलब वेट में डिपेंड करता है, दिस इज क्लियर राइट, कि वेट में डिपेंड करता है। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक इट, लाइक योर जोश। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नाउ so it depends on what we have seen, what it depends, force of friction depends on the nature of surface, बहुत बार बोल दिया मैंने कि ये रफ है या स्मूथ है, एंड वेट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ज्यादा वेट ज्यादा फ्रिक्शन, कम वेट कम फ्रिक्शन, ज्यादा रफ ज्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ होगा तो ज्यादा स्मूथ लेस फ्रिक्शन, सो स्मूथ क्या है, स्मूथनेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन, स्मूथ बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कमेगा, स्मूथ कमेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऐसा, ओके। तो और एक थिंग आ गया आपके लिस्ट में, क्या आया कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, adhesion is directly proportional to friction, roughness is directly proportional to friction, whereas smoothness is indirectly proportional to friction। एक गड़े इसका मतलब है वन बाई का मतलब है एक बढ़ेगा एक कमेगा एक कमेगा एक बढ़ेगा, सिंपल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये इनडायरेक्ट का साइन है और ये डायरेक्ट का साइन, सिंपल, अंडरस्टूड।
So force of friction does not depend on the area of surface in contact. It only depends on the nature of surface. Okay. So क्विज चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में. तो दो फैक्टर्स क्या है, रफनेस और क्या है, दैट मीन्स नेचर, सॉरी नेचर एंड वेट. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, देखिए, which of the following will produce the maximum friction? पुलिंग अ मेटल क्यूब मास 2 kg. मास देखिए, इसका मास है 5 kg, 2 kg, 2 kg. साइड देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. आप इसे अपना नोइंग से बताइए क्या होगा, अपना विजुअलाइज कीजिए. ओके, आंसर होगा ये. क्यों? अरे बाबा, साइज से डिपेंड करता है. तो साइड को हटा दीजिए, मैं पहले ही बोल दिया साइड से डिपेंड नहीं करता. साइड क्या होगा, साइड नहीं होगा. जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ा तो साइड का बारे में, पढ़ा क्या फ्रिक्शन में, तो वो क्यों लाएंगे. इसलिए इसका ज्यादा है तो इसका ही आंसर होगा ना. सिंपल क्वेश्चन था ये. देखिए, the force of friction depends on the nature of surfaces in contact and mass. Since the metal cube in option B has the highest mass, pulling it will produce the maximum friction. ये आपको पता ही है, राइट. आपने नहीं पढ़ा साइड के बारे में तो क्यों आंसर दे. करेक्ट नो और नॉट. ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि a rough surface offers more friction than a smooth one. ये ट्रू है, बोलिए तो. रफ सरफेस ऑफर more friction than smooth one. ट्रू है तो ये. और on rough surface there are large number of irregularities. ये भी करेक्ट है. अब आपको बोलना है तो ये दोनों तो गलत हो गया. करेक्ट एक्सप्रेशन है या नहीं करेक्ट एक्सप्रेशन है. ऑब्वियसली क्यों करता है वो, क्योंकि उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज है. तो यही तो आंसर होने वाला था. ओके, सो सिंपल. ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं बोला, ज्यादा रफनेस में ज्यादा इरेगुलरिटीज और ज्यादा फ्रिक्शन. मैं ऐसे ड्रॉ कर भी दिखाया तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे होगा, राइट. अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया प्रीवियस सेशन 2 टाइम्स देखो, उसके बाद 2 मिनट का वीडियो देखो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. मैंने ऐसे ही समझाया है. ओके, डोंट से लाइक दिस. यू कैन, बस हिम्मत रखो अपने में, आप कर पाओगे. ओके, ना देखिए क्या है यहाँ पर. A rectangular box is placed on a rough horizontal. एक इसका ऐसा है और ये केस 2 का है, केस 1 का ऐसा है. The friction force will be more in case 1, more in case 2, equal in both cases. में बोला था, क्या बोला था, सरफेस कांटेक्ट से फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, राइट. ये देखिए, it does not depend on the area of surface in contact. इफेक्ट्स क्या है फ्रिक्शन का वो आप देखेंगे. चलिए चलिए, to realize some effects, let's go on a trip to Manali with Sam and Sandy. Sam और संडी मनाली में जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं, क्यों चले. So Sam and Tom reach मनाली by car. कुल्लू मनाली गए हो कोई तो मुझे थोड़ा टैग कर दो, अपना शॉर्ट बना लीजिए यूट्यूब चैनल में. अपना कोई एक यूट्यूब चैनल बनाइए आप, शॉर्ट करके हैशटैग कुल्लू शुभम लिख दीजिए, कुल्लू शुभम लिख दीजिए जल्दी. ये आपका कार्य है, आपको करना होगा. ओके, चलिए. नाउ टेल मी,
या टायर्स वेर वर्न आउट। ये क्या हो गया, उसका टायर वर्न आउट हो गया। क्यों वर्न आउट हुआ? कुछ ऐसे काम किया ना, ऐसे ही वर्न आउट हुआ। ये क्या है बोलिए तो मुझे। व्हाट इज दिस वर्किंग ऑन अ टायर? उसका गाड़ी का तो टायर है, आप समझ में नहीं आया? ठीक है, मुझे समझा देता स्टोरी के माध्यम से कि उनका जो गाड़ी का टायर है, उनका टायर वेयर आउट हो गया, मतलब वो पंक्चर हो गया, फट गया। आप समझ में आया? चलो, ना ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हो रहा है कि फ्रिक्शन के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी बता देता हूँ। Sam further explained that treads and grooves on a tire are responsible for the grip of the car on the road, which slowly wears out due to usage. वो बोल रहा है कि ऐसे ग्रीप होता है टायर में, ग्रीप्स, ग्रूव्स, ये सब होता है, ये वेयर आउट हो जाता है या फर जाता है, फट जाता है, टीयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रोड में चल रहा है। ये क्या लॉजिक है? मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आया। यूसेज हो रहा है तो फट जाएगा, क्यों? आप समझ रहे यूज हो जा रहा है तो फट फट तो जाएगा ही, ज्यादा यूज हो जाए। पर और एक भी रीजन है, ये नहीं होता तो नहीं होगा। सो एक थिंग करके देखिए, आप आपका हैंड दोनों को ऐसे रब कीजिए, आपका हाथ में हीट हो जाएगा। इट विल क्रिएट अ हीट, because when you rub any two surface, that means there is frictional force। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, वो क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक थिंग लर्न हुआ कि अगर फ्रिक्शन रहा तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा, हीट, हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे आप अपना मैच बॉक्स से फ्रिक्शन कराते हो, रब करते हो आपका मैच बॉक्स के साइड से, तो आप क्या होता है? वो बर्न होता है। क्यों होता है? हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है और वहां पर जो कार्बन दिया है वो बर्न हो जा रहा है। ओके, सो ये हीट जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। सो friction generates heat, that's why ये टायर जब ऐसे घूमता है, हीट प्रोड्यूस होता है इनके डाउन में, और धीरे धीरे ये वेयर आउट होने लगता है। राइट, ऐसा था। यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है तो इसका पार्टिकल ऐसा हो गया, ऐसे ही कमते रहता है, वेयर आउट हो जाता है। क्यों? हीट की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से, क्योंकि वो चलता रहा है, चलता रहा है। ओके, some explain that due to friction, stick got heated and potassium chemical in the tip caught flames due to heavy temperature। इसका मतलब क्या है मुझे बताइए तो। क्या बोला? some explain that due to the friction, फ्रिक्शन की वजह से stick got heated, the stick, जो स्टिक से वो आग जलाएगा वो हीट हो गया, और जो पोटासियम केमिकल है वो बर्न हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सैम एंड सैंडी, तो हमने देखा क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट पॉइंट ये रिमेंबर्स, आप गर्भ में आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टोरी, बट डोंट बी मग्न इन द स्टोरी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आल्सो। सो पहला है हीट। नेक्स्ट क्या है देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग Sam and Sandy were ready to go on trekking. They had all the required accessories, but Sam stressed on a particular one thing, that was trekking suits। वो लोग ट्रेक करने के लिए जा रहे हैं, पर उन सैम बार बार बोल रहा है कि हमें ट्रेकिंग शूज चाहिए, ट्रेकिंग शूज चाहिए। ओके, सो सैम ने पॉइंट किया दैट वहां पर ऐसे ग्रूव्स होता है, आप देख पा रहे हो क्या? ट्रेकिंग शूज में ऐसा ग्रूव्स होता है या स्पाइक्स होता है, जिससे ग्रिप हमें मिल सके। अब देखिए, ये राफ सरफेस, ये राफ हो गया ना, ऐसा होगा तो ऐसा स्मूथ होगा, तो ऐसा स्मूथ होगा, नीचे वाला राफ हो जाएगा, तो ये कम फ्रिक्शन होगा। पर इसको भी राफ कर दे तो इसको भी राफ कर दे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मीन्स ज्यादा ग्रिप होएगा। अगर लेस फ्रिक्शन तो वी विल स्लिप डाउन, बट ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वी विल बी स्टेइंग इन अ प्लेस, वी विल बी
our grip will be okay. We will not slip down. Okay. As the shoes are grouped, the roughness is more. शूज ग्रुप क्या है, तो रफनेस क्या है, मोर है, इसलिए फ्रिक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। तो रफनेस अगर इंक्रीज होगा तो फ्रिकनेस इंक्रीज होगा, इसलिए वो शूज ले रहा है। तो मैंने तो ये पढ़ा ही दिया था आपको। Now similarly you can connect the fact with the tires of vehicle, इसलिए टायर्स में भी ऐसा सी ग्रूव्स है। इस ग्रूव्स ग्रिप्स है, क्यों ग्रिप्स है, क्यों ग्रिप्स है, जिससे वो स्लीप ना खाए, वो स्ट्रेट रहे, it it will not fall down or it will not sleep. Understood? Clear? Okay. See, tires are also treated to provide grip on the ground which ensures a safe ride. So ये grip provide करते हैं ground में, जिससे वो एक safe ride हमें provide करता है। See how much, don't gossips here. See 164 slides I have to cover, and now I am in 34 slide. So don't gossip. I want to cover this whole chapter today. So while playing carom, Sam sprinkled some powder over the book. वो माउंटेन में वो कैरम ले गया था, वो कैरम प्ले कर रहा है। तब क्या हो रहा है, देख रहा है कि वो पाउडर स्प्रे कर रहा है सैंडी। सैंडी एक्सप्लेन किया कि स्प्रिंकल पाउडर ऑफ द बोर्ड एंड स्ट्राइकर वुड मूव स्मूथली। अगर हम लोग पाउडर डालें तो क्या होगा, स्मूथली मूव होगा। स्ट्राइकर विल मूव मीन्स द घोटी, मीन्स दैट वन that will move, that we have to heat with, that will move slightly. Okay. Powder fills up the irregularities in a surface making it smoother. पाउडर क्या करते हैं, irregularities में fill हो जाते हैं। जैसे ये irregularities है, तो ये दोनों सरफेस है, यहाँ पर पाउडर स्टाक हो गया। पाउडर का दूसरा कलर बना देता है, ब्लैक बना, ये बना देता है। चलो यहाँ पर पाउडर स्टाक हो जा रहा है। So actually now when we will be doing it will be like this. Actually it was like this. इसके ऊपर ऐसे पाउडर का लेयर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, स्मूथ हो गया, स्मूदर। मोर स्मूदर मींस लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन जब होगा इजीली मूव होगा, नहीं तो अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो अच्छे से मूव नहीं होगा। इसलिए उसे पाउडर डाल के उसे स्मूदर किया जा सकता है, जिससे वो इजीली मूव हो सके, जिससे वो इजीली मूव हो सके। Finally, before leaving in the evening, Sam and Sunny decided to cycling near west. वो दोनों साइकिलिंग करने के लिए जा रहे नियर बाई प्लेस में। चलिए, but since the cycle was old and rusted, extra effort was to be applied. Creaking noise also was coming while they were moving. They went to a mechanic to fix it. The mechanic applied some oil, grease in the moving part. ठीक है, क्या हुआ, वो साइकिल से राइड करने के जा रहे थे। दैट टाइम वो बहुत रास्टेड हो गया था, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा था। दैट टाइम व्हाट डन, they gone to the mechanic, they what done, they applied oil and grease over the cycle. So why they done, he explained that the irregularity surface rub against each other produce unpleasant sound. जब ये दो सरफेस इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो when they are like rubbing against each other, they are producing that creaking sound, unpleasant sound. Okay. By applying oil, जब हम लोग अप्लाइंग ऑयल कर देंगे वैसा ही हो रहा है, वहां पर वो ऑयल सेटल कर जाएगा और एक स्मूथ लेयर फॉर्म कर देगा, जिससे वो स्मूथ हो गया, जिससे साइकिल लेस फ्रिक्शन से चलेगा, मतलब अच्छे से चल सकेगा साइकिल। एंड द साइन द साउंड विल नॉट कम, बिकॉज रफ सरफेस में ये होगा, अगर ये स्मूथ हो गया तो सरफेस में साउंड साउंड भी नहीं आएगा, और साइकिल में पेडल करने में भी कोई दुविधा नहीं होगा, सब इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, remove the creaking. So
such substances that are which are applied to reduce friction are called lubricants. आपने देखा कि ऑयल अप्लाई किया गया फ्रिक्शन कम करने के लिए, आपने देखा पाउडर अप्लाई किया गया, ग्रीस अप्लाई किया गया। सो इन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, तो लुब्रिकेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बाय इन द मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको लेस करके एफिशिएंसी बढ़ा देगा। अब अगर आपके पास ऑटोमोबाइल है, एक ऑयल होता है ऑटोमोबाइल ऑयल, दैट वी हैव टू पुट इन द व्हीकल और एल्स इट विल बी डैमेज्ड। दैट इज द मेंटेनेंस, सर्विस जब करा जाता है तब इसे ऑटोमोबाइल ऑयल पुट किया जा सकता है। ओके, कौन सा डिक्रीज फ्रिक्शन के लिए नहीं है, ए बी सी डी। डिक्रीज, देखिए ये क्या है, ग्रीप है, ग्रीप मतलब इंक्रीज फ्रिक्शन। फाइनली वे while coming home they start explained Sandy explained about another interesting device called hovercraft. See, a device uses air as a cushion containing surface in order to reduce friction and move easily. The air is utilized to create a lift as well as air cushion in contact. देखिए ये एक लिफ्ट ऐसा एयर हो जा रहा है, air will push the thing and that will be raised up. Okay, तो जो एयर का यूज है वो फ्रिक्शन को लेस करने में हेल्प करता है। अगर आप एयर हॉकी खेले हो तब आप जानते होंगे कि कितना स्मूथली वो मूव करता है। सेम दैट व्हेन दे आर पुशिंग air pressure they are applying, that time it is becoming light and less pressure is being applied. So friction causes wastage of both energy and resources. So एक थिंग में पड़ा हीट करते हैं, हमें ग्रिप करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन, और लुब्रिकेंट से अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन। ये पड़ा है अभी तक। ओके, एयर का भी यूज कर सकते हैं ना। वो बहुत बहुत एडवांटेजियस है और डिसएडवांटेज, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, नेसेसरी इविल। नेसेसरी भी है और इविल भी है। ये बताइए तो मुझे पहले, उसके बाद जाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, increases friction, reduces friction. Find powder sprinkled on the carom board. That is because of reducing friction. I have told you this experiment only I have given. Increases friction while playing tug of war. Apply soil on their hands. Okay, this increase हो सके friction. Friction force cause of wearing of bicycle tires. चलो, no need of solving. ये देख लीजिए। Friction is called a necessary evil because it is important in our day-to-day activities, which is referred to evil because it is also unnecessary and creates loss of energy. अगर ये हीट प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो मशीन से वो डैमेज हो जाएगा, पर अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट राइट। ओके, सो मेनी थिंग्स वी कैन नॉट डू। देखिए एडवांटेज, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, we are able to ride because of friction. We are able to light a maxi because of friction. Also, friction causes wear and tear. Tires and soles of shoes wear out because of friction. Friction between the different parts produces heat and causes loss of energy and damages the part. It is the advantage of friction is the disadvantage of friction. Understood? Shown below are players playing kabaddi in a ground. What they will apply? ऑयल, सैंड, क्रीम, ग्रीस। देखिए आप इसे
समझिए क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा, पहले ये बताइए। ये तो रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर उनको अपने ये से, देखिए ये दोनों आंसर हो सकता है। ये जो पर्सन है ये अपने बॉडी में ऑयल लगाएगा, क्योंकि वो लोग बेटर ग्रिप उनके ऊपर नहीं कर पाएगा, और वो लोग अपने हैंड में सैंड लगाएगा, क्योंकि उससे वो बेटर ग्रिप कर पाएगा। ओके, सो हैंड में सैंड होगा और बॉडी में ऑयल होगा। सी सी why it is like streamlined linear to offer minimum friction? हाँ, correct or not? Snowbox is a design with smooth and flat bottom surface so to avoid to offer minimum friction, so that one can easily slide on a slope. तो ऐसा किया जाता है, एरिया कम है तो फ्रिक्शन विल बी also less, and there is no grooves. देखिए, the shoes of professional athletes who take part in 100-meter sprint race have spikes in the shoes. Why? Because it increases the friction. So that's why this one. Okay, tell me this one. Read the statements given below and choose the increase or decrease. The tires of the vehicles have 10 treads to increase. होगा तो ये दोनों में से saliva in our mouth dash friction क्या होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज भाई? जैसे ऑयल होता है वैसे सलीवा भी तो होता है, अपना माउथ में नहीं तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज नॉट गुड, करेक्ट और नॉट? सी सलाइवा अपने फूड के ऊपर से सेटल हो जा सकता है, जिससे हम स्वॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अगर फ्रिक्शन होगा अपना गला में अटक जाएगा, बस खत्म। Sandy is observing the matchstick that is not catching fire even when she is rubbing gently against the matchbox. The matchbox have been used so many times, the possible reduce even the matchbox has lost its roughness. So जल नहीं रहा है क्यों? क्योंकि वो अपना रफनेस खो बैठे हैं। It has lost its roughness. Correct. So these types of friction we will start in the next class. Till then, take care. Bye bye. Subham signing out the class. Bye.